انسانی زندگی کی مکمل زندگی کی ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات جو میں نے گزشتہ جمعہ کہی تھی، انسان اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے مال و دولت کے نشے میں کہ میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، بس دو چیزیں اس کو کہنی چاہیے: موت کو روک کر بتائیں، اپنی پریشانیوں کو آنے سے روک کر بتائیں، اور اپنی موت کا وقت اپنے ہاتھوں سے طے کر لیں۔ یہاں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اس وقت کے نمرود سے، اس وقت کے بادشاہ سے جو اللہ کا باغی تھا، تمہارا رب کیا کہتا ہے ابراہیم؟ تو ابراہیم نے کہا علیہ السلام، میرا رب ایسا ہے، میرا رب ویسا ہے، میرے رب کی یہ خوبیاں ہیں، میرا رب زندہ انسانوں کو روزی کا دستر میسر کرتا ہے، اور مردوں کے لیے اللہ ایک راحت کا پلیٹ فارم بناتا ہے۔ یہ سارے معاملات انہوں نے سنائے۔ زندوں کو زندگی بخشتا ہے، مردوں کے لیے آخرت کی زندگی سنوارتا ہے، کسی کو جلاتا ہے تو کسی کو مارتا ہے، یہ انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ تو اس وقت کا بادشاہ کہتے ہیں نا، جب اگر کسی کے پاس کچھ زیادہ آ جائے، حد سے زیادہ، تو عقلیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو فوراً وہ بادشاہ نے ایک بے گناہ گار کو بلایا، اس کو قتل کر دیا، اور ایک گنہگار کو بلایا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم سے کہا، تمہارا رب یہی کرتا ہے نا، کسی کو جلاتا ہے تو کسی کو مارتا ہے، دیکھو میں نے بھی کر دیا۔ تو اب بتاؤ تمہارا رب میں ہوں یا کوئی اور ہے جو دکھتا نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا بے وقوف ہے، بادشاہ تو اتنے بے وقوف نہیں ہونا چاہیے جتنا یہ بے وقوف ہے۔ تو اس کے بعد موقع پا کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا میں نے تو تھوڑی تعریف کی تھی رب کی، مگر تو نے تو میرے رب کی تعریف کرنے پہ مجھے اور آمادہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں لے ڈباتا ہے، ذرا تم مغرب سے نکال کر بتاؤ اور مشرق میں ڈبا دو، میں مانوں گا تمہیں تم رب ہو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے دل میں ہیبت آ گئی، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا، میرے اندر تو اتنا پاور نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں یہ کام کر کر بتاؤں۔ مگر دوستو بزرگوں، اس سبق سے ہمیں کیا ملا؟ اس سبق سے ابراہیم کو ایک طرح کی وہاں کسوٹی بنانے کا موقع ملا، اور بہترین ایسے سلطان کے سامنے جو ظالم ہے، جابر ہے، ایسے کے سامنے انہوں نے ایک رب واحد کی دعوت دی، ایک اللہ جو قہار ہے، جو ستار ہے، جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، جو رب العالمین ہے، وہاں ٹھہر کر اللہ کی دعوت دی تھی، اس ایک آیت کے ذریعے سے، اس ایک مثال کے ذریعے سے۔ اس بادشاہ نے اپنی زبان نہیں کھولی، ایسا نہیں تھا کہ اب کوئی کام کرنے لگ جائے، اب آسمان سے سورج ادھر سے ادھر کرنے، بلکہ اس کی زبان خاموش ہو گئی، یہ میں نہیں خدا کہہ رہا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی بندے سے ڈیبیٹ کرتا ہے یا بات کرتا ہے، اس کے اندر کی ہیبت کو اگر آپ تولنا چاہو یا کوئی ایسا جملہ اس کے سامنے ذکر کر دو، اس کے ہاتھ پیر تھرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بات آتی ہے خدا کی خدائی پر، جب بات آتی ہے رسول کی رسولیت پر، جب بات آتی ہے اللہ کے کرم اور اللہ کے ذل جلال اور اللہ کے مہربان ہونے پر۔ بزرگان دین، انسان کی عقل اللہ نے محدود بنائی ہے، انسان کی عقل کمپلیٹ نہیں ہے۔ انسان کی اگر عقل کمپلیٹ ہوتی تو انسان پلین بنانے کے بعد کریش نہیں ہوتا،
انسان ٹائٹینک بنانے کے بعد ڈوب نہیں جاتا، انسان میزائل بنانے کے بعد آسمان میں ہی اس کے چھرے نہ اڑتے۔ انسان کی عقل کمزور ہے، ہاں وہ ایک ڈائیگرام تک پہنچ ضرور سکتا ہے، مگر اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، اس کی حقیقت تک جانے کے لیے اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا، تب جا کر اس کی وہ حقیقت، جس کو وہ حقیقت سمجھ رہا ہے، وہ حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ تب تک تو وہ صرف افسانہ ہے، تب تک تو وہ صرف ایک بہانہ ہے، تب تک وہ صرف ایک نام کی چیز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے مکہ کے مشرکوں کے اندر، منافقوں کے اندر یہ بات کہی تھی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اپنے آپ کو بہت بڑے زبان دار کہتے ہو نا، بہت بڑے اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے ہو نا، اپنی زبان جیسی کوئی زبان پیش ہی نہیں کر سکتا ہے، یہ تم جملہ کہتے ہو نا، ذرا یہ آیتیں ریپیٹ کر کر بتاؤ۔ اللہ نے چیلنج دیا تھا آسمان سے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ذرا ایک سورہ نہ صحیح، ایک آیت کے 2 ٹکڑے لا کر بتاؤ اس قرآن کے معنی، تب میں مانوں کہ تم اپنی عرب کے اندر عربیت کو جھاڑ سکتے ہو، تم اپنی عربیت کے اندر فصاحت کی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو لا سکتے ہو۔ 1 سال گزر گیا، کتنا؟ 1 year، 1 سال۔ آیت تو دور کی بات، حرف نہیں لا سکے، آیت تو دور کی بات، حرف جیسا لا کر بتانے کی ہمت نہیں آئی تھی ان کے اندر۔ یہاں دیکھیں آپ، جو دوسرا مرحلہ آتا ہے، انسان جب اپنے علم سے اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے تو فوراً اس کے اندر جو دوسرے پر کھلتے ہیں، اس کا نام ہے تکبر۔ علم کا سمندر اگر کسی بندے کے پاس آتا ہے تو اس کے پاس تکبر کا ایک گلاس ضرور آتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ وہ تکبر کا ایک گلاس اسی سمندر کے اندر نہیں پھینکے، بلکہ اس ایک گلاس کو اپنی زندگی کی وہ مٹی جس کا آخر میں اور آپ ہونا ہے اس میں ملا کر ختم کر دے، تو وہ سمندر جو آپ کے پاس علم کی شکل میں آیا ہوا ہے اب آپ کو فائدہ دے گا، آپ حق ناحق کے درمیان فیصلہ کر سکیں، آپ کے پاس اب وہ کام آئے گا جو آپ کرنا چاہیں گے۔ تو تکبر کی جو گھڑی ہوتی ہے نا، اس کا کانٹا رکتا نہیں ہے اصل میں، تکبر کا جو جام ہے نا وہ کبھی خالی نہیں ہوتا ہے، تکبر کا جو گھڑا ہے نا وہ کبھی اپنے آپ کو خالی ہونا نہیں دیکھتا ہے، تکبر کا معیار بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تکبر میری صفت ہے، تکبر کرنے والے کو ہم ہرگز نہیں پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، بیان شروع ہونے سے پہلے، انسان کی جو عقل ہے وہ انکمپلیٹ ہے، اور اللہ کی جو باتیں جو بتائی گئی ہے، جو اللہ نے رولز ریگولیشنز جو دیے ہیں وہ کمپلیٹ ہیں۔ تبھی تو نا آپ بتاؤ، اللہ کا کوسا ایسا رول ہے جس رول کو فالو کرنے کے 5 سال کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا ہو کہ یہ رول اللہ کا نہیں آنا چاہیے۔ ایک رول پہ بات کرتے ہیں آج۔ قرآن فرماتا ہے شادی شدہ مرد یا عورت زنا ریپ کر بیٹھ جائیں، ان کو زمین تک گاڑو، ان کے اس حصے کو کھلا رکھو اور ان کو پتھر سے مار مار کر ختم کر دو۔ سننے میں ہی ہیبت ناک دکھ رہی ہے سزا، اپلائی ہوں گی نا، خصوصاً ہندوستان میں کوئی مائی کا لال آپ کی اولاد میں بیٹیوں کے اوپر غلط نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اپلائی کر کے دیکھو، ایک بار چاندنی چوک کے سڑک پر، جو دلی کا ایک مین ایریا مانا جاتا ہے، ایک کام کر کر بتاؤ، پھر یہ ریپسٹ کی اگر اندر سے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں تو کہنا اللہ نے یہ رولز بتایا ہے۔ اور وہ رول 1400 سال پہلے دیا گیا تھا، اور آج تک وہ رول سبوں نے تسلیم کر لیا ہے۔
एक मरतबा कर कर बताओ, फिर उसके बाद देखना तुम्हारे अंदर कितना ताकत का मिजाज है कि तुम ये काम दूसरी मरतबा कर कर बताओ। यहां तो मसला अलग है ना, यहां तो जानी 80% तो पॉलिटिशियंस पाए जाते हैं, रेप करने वाले 90% तो वो लोग हैं जिनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, जेल के अंदर बसने वाले बड़े बड़े कैदी वो हैं जिनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है पीछे। जब वो वहां से निकल रहे हैं एक शान से निकल रहे हैं, वहां से वो निकल रहे हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल निकल रहा है। ये क्या तुमने तहजीब बना रखी है, ये तुमने क्या कल्चर बना रखा है। मुजरिम की सजा थी, तुमने मुजरिम की सजा को बदल कर तुमने ये काम किया कि उसको प्रोटोकॉल दिया, तुमने उसके साथ एक बहुत बड़ा काम कर दिया जिसकी वजह से अंदर से मुजरिम तैयार हो रहा है गुनाह पे गुनाह और जिना पे जिना, वारदात पे वारदात करने के लिए। वरना इतनी ताकत नहीं थी, इतना उनके अंदर पावर नहीं था जितना हम लोगों ने आज उनके दिलों के अंदर बिठा दिया। और बिठाते जाओ, कल को हमारी औलाद, आज तो हम सिर्फ न्यूज सुन रहे हैं ना, उनके फुला चुना वो वगैरह वगैरह, कभी किसी दिन हमारा अगर हत्ता चढ़ गया, कभी हमारी चौखटे अगर हट गई, कभी उनके हत्ते लग गई, तो जब अकल आएगी अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू, अब समझ आएगी ये आयत का हकीकी मतलब और हकीकी तफसीलात। बुजुर्गान दीन, मतलब यही है साफ कहने का, अल्लाह ने दो चीजों को बहुत कंप्लीटली बनाया है, एक इस्लाम को, एक मुसलमान को। मैं यहां इंसान नहीं कह रहा हूं, अच्छा गौर करें इस पर। अल्लाह ने दो चीजें कंप्लीटली बनाई है, एक इस्लाम को, एक मुसलमान, बस। इंसान नहीं, इंसान कंप्लीट है अल्लाह के बनाए एतबार से, मगर इंसान के अंदर अगर इस्लाम ना हो तो वो अनकंप्लीट है। ये सही है, ये बात करेक्ट है, इसलिए कि इंसान के अंदर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, गले में 10 तोले भी अगर वो सोना पहन ले, हाथ में चांदी के कड़े भी अगर लगा ले, हीरे जवाहिरात से अगर वो मुज़य्यन हो जाए, उसको सिर्फ इंसान कह सकते हैं, उसको कंप्लीटली इंसान नहीं कह सकते हैं। हाँ, दुनिया की नजर में हो सकता है फला मालदार है, वो है, इस्लाम की नजर में तो उसकी वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज, इस्लाम ने एक ज़ाब्ता बनाया है कि तुम्हें किस लाइन में जीना है, तुम्हें किस वे की तरफ अपना एक रूट तय करना है। ऐसा नहीं है, मैंने गुज़िश्ता बताया था, उसी का मैं पार्ट 2 इस जुमा के अंदर बता रहा हूं। इंसान को अल्लाह ने जो बनाया है वो एक रूट देकर बनाया है कि तुम इसमें काम करो, इससे हटोगे तो परेशान हो जाओगे। अब बताइए, आप जो भी इस रूट से हटे हुए हैं वो दिखा तो नहीं रहे होंगे आपको परेशान है, हम फुला हैं। 99.9% परेशान है। क्यों? इस्लाम छोड़ दिए हैं, बेसिक चीज इस्लाम छोड़ दिए हैं। अगर कोई आदमी ये कह रहा है सतर छुपाए बगैर ड्रेस कपड़े पहनकर, उसको कपड़े क्या कहेंगे, चिंदी कहेंगे थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आप। लड़कियां ऊपर के हिस्से को छुपाई हैं, मर्द उससे थोड़ा वो छुपाए हैं। ये जो चिंदी पहनकर जो आम लोग जो फिर रहे हैं, उनको यह समझ आ रहा है कि हम फैशन को प्रमोट कर रहे हैं। वाह, तुम फैशन को प्रमोट नहीं कर रही, अपने जिस्म के वो चीजों को दिखाना चाह रहे हैं जिसके जरिए से सामने वाले की अकल और उसकी नजर तुम्हारे ऊपर ललचाती हुई पड़ रही है। क्या बेगैरत इंसान आ चुके हैं माशरे के अंदर। इतना सोचिए आप, इतना ही ज्यादा नहीं सोचो, इतना ही सोचे आप, इतने बेगैरती को भी प्रमोट किया जा सकता था 2026 में कि कोई फैशन के नाम पर इतनी घटिया चीज को अपने बदन पे टांग कर, पहनकर, जिसको मैं और आप चिंदी ही बोलेंगे, वो पहनने के बाद हमारा मुआशरा उसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे सकता था। ये बहुत बड़े हमारे आइडियल है, ये हमारे बहुत बड़े फुला हैं, ये हमारे सर के ताज हैं। दामाद बना लो ना,
दामाद बना लीजिए, बेटी दे दीजिए। क्या जाहिल कौम आ गई है यार, अल्लाह रहम करे। मुकम्मल लिबास इस्लाम का दायरा, मैं नहीं कह रहा हूं इस्लाम का कोई लिबास है, मैं मानता भी नहीं इस्लाम का कोई लिबास। मैं ये जरूर कहूंगा आपको हस्बे मौका अपने बदन का सतर छुपाना यह आपके ऊपर फर्ज करार दिया गया है। सतर दिखाई जाने वाली औरतों को और सतर दिखाई जाने वाली औरतों के साथ कुछ देर बैठने को दुनिया और दुनिया के अंदर के तमाम चीजों से बेहतर समझ रहे हैं। अफसोस होता है मेरे को इस बात पर। ये कब हुआ? इस्लाम को छोड़ने की वजह से। इसकी बेसिक वजह यही है, इस्लाम को हमने छोड़ दिया, हमें मालूम ही नहीं है कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, हमारा पार्टनर कौन होना है, हमारा बिजनेस पार्टनर कौन होना है, अपना जिंदगी का पार्टनर कौन होना है, अपना फ्रेंड सर्किल कैसे होना है, अपने साथ क्या कैसा भूल चुके हैं हम लोग। इसकी वजह से ये मरहले आए हैं। अब तो नया है मामला। फ्रेंड तो एक तो था, एक जमाने तक गर्ल फ्रेंड यानी लड़की फ्रेंड थी। अब क्या हुआ? वो जो गर्ल फ्रेंड थी हम ये समझते थे एक जमाने के बाद उसका निकाह उससे होता, ऐसा समझते थे। उसको ये गंदा मुआशरा ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि वो गर्ल फ्रेंड अब जाकर सिर्फ गर्ल हकीकत में फ्रेंड बन चुकी है कि कॉफी पे साथ पे रहेंगे, थोड़ी देर हम हंसी मजाक करेंगे, आपस में एक दूसरे को अरे तुरे बोल लेंगे। हम जैसा मेरा एक बशीर दोस्त है वैसी एक मेरी एक स्मृति भी एक दोस्त है, बस ये दोस्त है हम लोग। ये घटिया मुआशरे को आप प्रमोट करोगे? ये घटिया मुआशरे को आप एक्सेप्ट करोगे? ठीक है, इसको रोक दीजिए, स्किप। क्या आप ये चाहोगे मेरी बेटी, क्योंकि हर चीज अपने पे लेती हूं जरा जल्दी समझ में आ जाता, और इतना जल्दी समझ में आता खून भी खोलता अंदर से, और खोलना भी चाहिए, ये मर्द की अलामत है। मेरी बेटी, आपकी बेटी अगर किसी रमेश या फिर किसी अब्दुल्ला की खाली फ्रेंड है, ऑफिस फ्रेंड है, बोलो ना फ्रेंड है खाली, वो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? फ्रेंड कहकर ही आप कार में छोड़ देंगे कि जाएं आप, फ्रेंड है? क्या वो अल्लाह के पास का इल्म कम है या आपके पास इल्म ज्यादा है? मुझे आज तक ही समझ नहीं आया। ये डिसाइड करो, अल्लाह ने जो गैर महरमों के साथ अपना रिलेशन इतना लंबा लेके चलना या उसके साथ इतनी लंबी कहानी चलना, ये जो हराम करार दिया है अल्लाह ने, क्या वो अल्लाह का रूल गलत है या फिर आपकी अकल बढ़ चुकी है? 26 में, सॉरी, ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर अल्लाह का इल्म कम दर्जे का था तो यहां मानेंगे कि आपकी अकल एक हाई लेवल पर चल चुकी है, तो ठीक है, आपकी अकल हाई लेवल पे जा चुकी है, तो क्या तुमने इस फ्रेंड सर्किल के अंदर हाईलाइट काम नहीं किए हैं? फ्रेंड कहकर तुमने हदें पार नहीं की है? फ्रेंड कहकर तुमने उसके अंदर की जिंदगी को तबाह नहीं किया है? ये सवाल है हमारा। अल्लाह ने बनाया ही वैसा निजाम है, तो अब अल्लाह ही के निजाम को अब देखें आप, जहां से निजाम निकल रहा है, जहां से रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, वहीं के रूल्स रेगुलेशन को बनाने वालों को फॉलो करना ये और आपकी मेरी जिम्मेदारी होती है। हम अपने तरीके से चलेंगे, ये आपका मर्तबा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने बनाए हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन को जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अल्लाह ने क्यों बनाया है, गैर महरम के साथ क्यों नहीं रहना है, मुझे ये रिलेशनशिप क्यों नहीं चलाना है, मुझे इस तरीके का वे क्यों इख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर आपकी अकल अल्लाह के इल्म से अगर बढ़ रही है तो आप इस बात को प्रूफ करो, जैसे अल्लाह ने प्रूफ किया है कुरान के अंदर, नबी ने प्रूफ किया है अहादीस के अंदर, सहाबा ने प्रूफ किया है अपनी जिंदगियों के अंदर, ताबईन ने प्रूफ किया है अपनी लाइफ के अंदर, तबे ताबईन ने प्रूफ किया है अपनी बात की जिंदगी के अंदर, और आज के दौर के उलमा ने प्रूफ किया है मुआशरे के दौर के एतबार से। ये सारी चीजें अगर आप प्रूफ करते हैं तो हम खुद आपके इस नोट पे फतवा लिख देंगे कि आप गैर महरम के साथ दोस्ती लगा सकते हैं। तबाही ही तबाही है, उसके अलावा कोई दूसरा मैटर नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ दिन दोस्ती कर लिया, हकीकत में शादी हो गई, वो अलग चीज है, उसके बाद वो अलग मरहला है, उसका गुनाह अलग है, वो अलग मसला है। मगर ये जो मुआशरा आजकल चल रहा है, अल्लाह रहम करे, बीवी अलग है,
फ्रेंड अलग है और इसी तरीके से 2-3 को जो झांक रहा है वो अलग है। यूं समझ लें कि एक बंदे के हक में 10 लोग चल रहे हैं, कहां अपनी वो बीवी से सच्ची मोहब्बत करेगा बताइए। कितने ऐसे वाकयात हैं, गिनाना शुरू करो 1 साल इसी पे लग जाएगा पूरा। ऐसे वाकयात पूरे एकदम रियल वाकयात, ये हुआ वो हुआ नहीं, जो मैंने अपने आंखों से देखे हैं। तौबा इलाही। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब आगे चलते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर दूसरा जो मरहला हुआ है वो मरहला है इंसान अपने आप को कंप्लीट समझ लिया है। मैंने जो अभी कहा, इंसान कंप्लीट नहीं है, वरना तो बहुत सारे ऐसे मसाइल, ऑपरेशन फेल नहीं हो सकता था। ऑपरेशन फेल इसलिए हो रहा है कि इंसान अनकंप्लीट है, इंसान के अंदर वो ताकत नहीं है, वो खुदा चाह रहा है। खुदा कंप्लीट है। आप बताओ खुदा का कोई हुक्म अनकंप्लीट है तो नहीं बता सकेंगे आप। चोरी करे अगर कोई तो हाथ काट दो सिर्फ मोहल्ले में 4-5 के, बताओ उसके बाद चोरी करने का हाथ सीधा सीधा हथेली अलग। अब बताओ किसी के अंदर चोरी करने की ताकत पाई गई तो गलती से भी नहीं होगा ये काम। जैसा कि हम दूसरे कंट्रियों की मिसाल देते हैं, दुबई के अंदर फोन रखा गया, 1 दिन के बाद वो बंदा आया तो भी फोन वहीं पाया गया। इंडिया को इसके अंदर देखा गया तो फोन अभी रख रही थी उड़ा लिए। तो तुमने अपने हाथों से किया है ये मरहला। यहां की बेरोजगारी का आलम देखो, ये क्यों हुआ? तुमने अल्लाह के अहकामात को छोड़ा है। तुमने क्या किया है? जो हैसियत जिसको देना था वो नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये मरहले हैं। वरना तो अल्लाह ने कहा था एक अमीर या एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, अपने हर गरीब का ख्याल करना। आपने नहीं किया। एक वो पॉलिटिशियन लीडर जो अपने मातहत में अगर कोई ऐसे लोग हों जो जॉबलेस हैं, उनकी फिक्र करना जरूरत थी। तुमने क्या किया? पहली फुर्सत में अपने वोटों को जीत का जरिया बनाकर फौरन तुमने एक बेहतरीन फॉर्च्यूनर निकाली। तुमने 1 हफ्ते के बाद अपने बच्चे को क्या दिला दी? एक बेहतरीन थार दिला दी। ये तुम ये समझते हो, ये कामयाबी समझते हो। ये कामयाबी नहीं है, ये धोखाबाजी है, ये गद्दारी है, कौम के पैसों के साथ लूटमारी है, या यूं समझ लीजिए कि यह हकीकत में चोरी है। अगर हिंदुस्तान में खुदा का वो हुक्म पारे 6 का सारिक वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, सही कह रहा हूं, ये बात सुने आप, चोर या चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, मैं लिख के दे सकता हूं हिंदुस्तान के अंदर आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस के हाथ काटे जाएंगे चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इतना चोरी किया है उन लोगों ने, इतना घोटाला किया है उन लोगों ने। वो उन्हीं का तो घोटाला है, ये मेरे जुमले पे आप उतना ज्यादा गौर ना करें। वो घोटाला होने की वजह से तो आज माशरे की यह हालत हो गई है। कितने बताइए आप? 1000 अगर नौजवानों को किसी कैंप में बुलाया जाए, हाथ उठाइए किसकी बेहतरीन जॉब है, दुनियावी एतबार की बात कर रहा हूं, तो आपको 50 नहीं मिलेंगे जी मेरे पास वेल जॉब है बोलकर, नहीं मिलेंगे। क्यों? आधे से ज्यादा तो बैठे हुए हैं। 1 लाख की आपको रिश्वत देना पड़ेगा, 2 लाख का तो आपको बेंच पर रखना है, तभी तो आप MBBS पाएंगे। और आपको ऐसे ऐसे चीजें जो सारे के सारे रिश्वत पर मबनी है, ये चोरी है, तभी तो हाथ काटे जाएंगे। चोरी का मतलब ये नहीं है उसने उधर देखा इधर से उड़ा दिए, नहीं। चोरी वो भी है, रोड कंस्ट्रक्शन में अगर आपको 1 करोड़ का बजट पास हुआ, वो थोड़ा बता रहा हूं मैं, जुबान उतनी बड़ी नहीं है, 1 करोड़ का बजट सेंक्शन हो गया, उस 1 करोड़ के बजट में तुमने सिर्फ 20 लाख लगा के बाकी क्या उड़ाए? चोर हैं आप कोई बहुत बड़े वो नहीं है कि आप हमारा बेटा रोड कंस्ट्रक्शन में एक सिविल है बुला है, चोर है बोलो ना साफ सीधा बायोडेटा में, मेरा बेटा चोर है। गवर्नमेंट से निकला हुआ 1 करोड़ का पैसा सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए लगाता है, 70 घाटा करता है, ऐसा बोलो ना, मजा आएगा सुनने में। अगर आपकी वालिदा आप बीमार हो गई, कैब बुक करके अगर आप रोड पर जा रही, रोड पे खड्डे हैं तो उस कैब वाले को गालियां देंगे, कैसा चलाते हो, बेवकूफ है, बदतमीज है, ऑटो वाले ऐसे ही रहते हैं, फुला है। मगर ये नहीं कहेंगे कि आपकी बस्ती में जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो 1 करोड़ 2 करोड़ का बिल पास हुआ था उसने सिर्फ 40,000 लगाए, फुला का बच्चा चोर है, हरामी है, जलील है। ये नहीं कहेंगे, ये तो कहेंगे कि उसने तो अपना काम कर दिया। हकीकत में अगर वो पूरा पैसा लगता तो आपकी राहत बनती, मेरे लिए राहत बनती। ये क्यों नहीं सोच रहे हम लोग? ये क्यों, ये माशरा ये क्यों ऐसा लोगों को गौर करा रहा है? इसीलिए ना
वेल एजुकेटेड मुआशरा बन चुका है, गधों का मुआशरा बन चुका है, ये बोलिए। वेल तालीम सेटल मुआशरा बन चुका है। अनएजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं पूरे, पढ़े लिखे भी जाहिल रहते, आपको मालूम है ये बात? पढ़े लिखे भी जाहिल रहते, थोड़े पढ़े लिखे जाहिला आने की वजह से ही ओल्ड एज होम बने हुए हैं, वरना तो हमको मालूम भी नहीं था ओल्ड किसको बोलते, वो सारे क्या रहता, कुछ भी नहीं मालूम था। हम तो अपनी माँ को अपने हाथ से रोटी खिलाना ही हज उम्र की इबादत समझ लिए थे, तुम तो एक अलग ही पैटर्न इख्तियार कर ली। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये बातें थी उस अंदाज में जिस अंदाज में मुझे समझाना था, मगर याद रखें अल्लाह के साथ ये मामला नहीं हो सकता है, अल्लाह के साथ ये वाला कल्चर नहीं इख्तियार किया जा सकता। अल्लाह के साथ अगर इंसान उतना कंप्लीट होता तो अपने माँ बाप को इस बेहाली में नहीं छोड़ता, और अगर अल्लाह के जरिए से अगर इंसान उतना ज्यादा कंप्लीट हो सकता तो इंसान अपनी अक्लों को इस्तेमाल करके उतना बड़ा प्लान तैयार करने के बाद भी बेकार नहीं होता। हुआ क्यों है? इसीलिए हुआ है कि वो इंसान अभी अनकंप्लीट है, इंसान के अंदर उतना ही अकल का मरहला है जितना ने अल्लाह दिया है। बस ये एक चीज है जो हमको बेहद समझना चाहिए। आज के उन्वान में 6-7 मिनट के अंदर दूसरा जो मरहला है वो ये है, मुआशरा अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हर चीज का एक टाइम पीरियड तय किया हुआ है। हालांकि टाइम पीरियड तय करना भी अल्लाह का काम है। रमजान में ही रोजे, चंद अय्याम आएंगे तो ही हज होगा, कुर्बानी ये अय्याम में छूंगी, ये टाइम पीरियड खुदा की तरफ से कंफर्टेबल होके आता है, तब बंदों पे लागू होता है, ये रूल बन जाता है, ये सेशन बन जाता है पूरा। इसके अलावा जो इंसान हाँ इतना ही है बस, इसके अलावा अल्लाह ने इसके अलावा जितने टाइम पीरियड है वो अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किए हैं। क्या किया है हम लोगों ने? अब यहां देखिए आप, मदर्स डे ये अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया है। वालिदैन की तो 24 घंटे खिदमत थी, वालिदैन की तो 24/7 खिदमत थी, वालिदैन के लिए तो हर लम्हा लब्बैक कहने वाला का जुमला था, वालिदैन के लिए तो अपनी जान निछावर करने वाला मामला था, वालिदैन के लिए तो अपने आप को बिछा देने का दर्जा था। तुमने क्या किया है? मदर्स डे खत्म, फादर्स डे खत्म, चिल्ड्रंस डे, ये जो डे तुमने मुतय्यन किया है, इससे जिसका डे बना रहे हैं उसकी अहमियत नहीं, उसकी हकारत सामने आ रही है, उसका कम दर्जा सामने आ रहा है। किसी एक दिन, अब देखें आप, कोई एक दिन हमने काम कर लिया बस उसको छोड़ दिया, मतलब यही हुआ ना, वो एक दिन का है कर लो। असल जिंदगी को लेते चलो, असल जिंदगी को लेते चलो कह कर ये असल हुआ या एक दिन को बना के खत्म करने वाला नकल हुआ? ये बेकार हुई ना चीज। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मेरी मां पुकारे या मोहम्मद, मैं नमाज तोड़कर निकलूं, ये कहां गया? ये तुमने क्या बना लिया? मगरिबी तहजीब का तो ये डायग्राम था। हमने अब बखुशी, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा कुरान से बड़ी चीज आपको मिल गई ना, इसलिए आपने ले लिया। अल्लाह से अभी भी तौबा करने का मौका है मेरे भाई। अभी क्या गुजरा चंद दिन पहले 31 पे मजदूर डे, लेबर डे गुजर गया। क्या साबित किया तुमने उस एक दिन के लिए? रसूलुल्लाह ने तो फरमाया था कि हर वो आदमी जो आपकी उजरत पे काम करता हो वो अल्लाह के यहां बड़ा मकबूल बंदा है। अल्लाह के रसूल ने मजदूर के हाथ चूमे हैं, सही बता रहा हूं मैं आपको ये बात। अल्लाह ने हाथ नहीं मिला, अल्लाह के रसूल ने हाथ नहीं मिलाया था, बल्कि हाथ मिला के उन्हें चूमा और कहा कि ये हाथ तुम्हें कल जन्नत तक ले जा सकते हैं। हमने क्या किया? मजदूर एक ही डे, और इतना उनको गिरा दिया, बस एक वक्त में हमने उनका काम तमाम कर दिया। उसके बाद अब उनका कोई हमारा मरहला नहीं है। बाज़े लोग तो ऐसे होते हैं माशरे के अंदर, हाँ अगर कोई मरहला कोई ऐसा है कि आपने उसको थोड़ा सा जहन में नहीं रहा, फुला है, या अलग चीज है। मजदूर डे का मतलब यह हुआ कि आपने उसकी अहमियत एक दिन कर दी। बाज़े तो ऐसे भी आ गए हैं कि एक जमाने तक उस मजदूर की मजदूरी अदा नहीं करते हैं। अब बताओ, तुम इस मजदूर का हक कहां अदा कर दिया? रसूलुल्लाह ने तो यह फरमाया था ना, उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। अब हर मजदूर की जरूरत नहीं है कि उसको पसीना है। आज मजदूरा एयर कंडीशन में बैठ के वर्क करते रहते, वो भी मजदूरी है, वो भी काम ही कर रही। अब देखें आप, कितने ऐसे लोग होते हैं 4-4 महीने सैलरीज बैक होती है, 4-4 महीने, 6-6 कहां से चलेगा यार? 12-12 महीने, साल भर का नहीं दिया जाता है। बाद ऐसे होते हैं, बाद ऐसे मराहिल तय कर लिए जाते हैं
تو تم نے صرف ایک مزدور ڈیکو تو تم نے متعین کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مزدور کو ستانا یہاں سے آسان ہو گیا. اسی لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں یہ سمجھ لو آپ لوگ کہ کوئی بھی دن متعین نہیں کرنا ہے, کوئی بھی دن متعین نہیں ہے, کرنے دو یار جس کو جو کرنا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں کتنے کی سارے بتوں کی عبادتیں ہوتی تھی, رسول اللہ سمجھاتے تھے مگر ان کے پیچھے اپنا ایمان نہیں خراب کرتے تھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے لات و عزا جو بڑے بڑے بت تھے رسول اللہ نے ماتھا ٹیکا ہو, ارے اتنے لوگ ٹیک رہے ہیں میں بھی ٹیک لوں چلو. ارے آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے مغربی تہذیب کو تو گلے میں ہار ڈال لیا ہے, اتنا ضروری سمجھ لیا ہے اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. یہ اس غفلت سے باہر نکلے عزیز دوستو بزرگوں. آخر میں یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑیں, ہم اپنی زندگی کو احادیث سے جوڑیں, ہم اپنی زندگی کو علماء سے جوڑیں اور مفتیان کرام سے جوڑیں, اور اپنی زندگی کو جہاں تک ہو سکے اپنی مسجد کی چہار دیواری سے جوڑیں. تب جا کر اللہ رب العزت آپ سے اور آپ کے اس کام سے جس کام سے آپ کو کام ہوتا ہے اللہ اس کاموں میں برکت نصیب فرماتا ہے. کیوں؟ آپ نے پوری زندگی لگا کر اہم چیزوں کو اللہ کی طرف حوالے کیا ہے. اور آخر میں یہ بھی بات کہہ دیتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں انکمپلیٹ ہیں. اللہ اور اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کے احکام, اللہ کے رولز ریگولیشنز یہ کمپلیٹ ہیں, اسی پر چلیں گے تو زندگی کامیاب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.